الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت رحمہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مکرم سامعین حضرات، مسلسل الحمدللہ آپ تذکرہ رسول سن کر ذکر مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کی محفل میں آ کر آپ اپنے دلوں کو منور کرتے رہتے ہیں۔ مجھے زیادہ وقت آپ کا لینا مناسب نہیں، اس لیے کہ گزشتہ رات بھی مولانا بتا رہے تھے کہ آپ دیر سے پروگرام سنتے رہے۔ بات یہ ہے، وہ نوجوان بھی اس دھرتی پر، روح زمین پر خوش قسمت ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا، محنت کوشش کر کے علماء کرام کے ہجوم کو آپ کے سامنے پیش کیا، اور آپ علماء کرام کی قیمتی باتیں بھی سنتے ہیں اور ان لوگوں کا دیدار بھی کرتے ہیں۔ آپ کا یہاں بیٹھنا بھی قیمتی ہے اور آپ کا سننا بھی قیمتی ہے، اور آپ کا ہر لمحہ قیمتی ہے، اس لیے کہ اس لمحے کی نسبت مصطفیٰ کے پروگرام کے سننے کی طرف ہے۔ میرے بھائیوں، وقت تو گزر ہی جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا وقت نیند کے اندر گزر گیا، کسی کا وقت کوئی چیز دیکھنے میں، موبائل دیکھنے میں گزر گیا اور گزر رہا ہوگا، لیکن حقیقت بات یہ ہے، ہم پر اللہ کا بڑا انعام ہے، بڑا احسان ہے اس مالک کا کہ اس نے ایسے مادیت کے دور کے اندر، جب دنیا انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہو اور مختلف مصروفیات میں انسان کو لگا رہی ہو، اور انسان ہر وقت دنیا اور دنیا کے امور کے اندر مصروف ہو، ایسے حالات کے اندر وقت نکال لینا، اپنی نیند کو قربان کر دینا، اپنے وقت کو ذکر مصطفیٰ کے لیے قربان کر دینا، میرے بھائیوں یہ بہت بڑی خوش قسمتی والی بات ہے۔ آج کی رات نامہ اعمال کھلے گا تو اس میں آپ کو روشن نظر آئے گی۔ آج کا یہ وقت قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے گا تو تب پتہ چلے گا کہ یہ وقت ہمارا کتنا قیمتی وقت تھا۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنا یہ باعث اجر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا یہ باعث اجر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا یہ دنیا آخرت کا اللہ نے کامیابی کا مدار رکھا ہے۔ اور یہ صرف اس لیے ہم ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے، بلکہ خود اس پروردگار عالم نے اپنے اس محبوب نبی کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ تو نبی کا تذکرہ کرنا یہ اللہ کا بھی عمل ہے، اللہ کا بھی طریقہ ہے، تو یہ سنت اللہ بھی ہوا اور سنت صحابہ بھی ہوئی۔ صحابہ بھی رسول اللہ کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ مختلف صحابہ مختلف مقامات پر کبھی فرماتے میرے خلیل نے مجھے یوں فرمایا، کبھی کہتے میرے اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں یوں فرمایا۔
کبھی فرماتے ہیں رسول نے فلانے موقع پر یوں مثال دی. صحابہ کرام بھی رسول اللہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے. تو یہ رسول اللہ کا تذکرہ کرنا میرے بھائیو یہ باعث نجات ہے، اور اس سے آدمی کو دونوں جہانوں میں اجر ملتا ہے. جب میں اللہ کی مقدس کلام کو دیکھتا ہوں تو پورا کا پورا قرآن ہی رسول اللہ کے تذکرے سے بھرا ہوا نظر آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اللہ کا قرآن بیان کرتے ہوئے نظر آتا ہے. جب میں نے قرآن کو شروع میں دیکھا، قرآن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھا، تو آپ کو دیکھا ہوگا کہ اللہ کا قرآن بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، اور بسم اللہ حرف با سے شروع ہوتی ہے. حرف با اللہ کے قرآن میں شروع میں کیسے آ گئی؟ قرآن شروع میں اللہ کے نام سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہاں تو قرآن کا آغاز بسم اللہ کی با سے ہو رہا ہے. جب میں نے غور و فکر کیا، اس کے اندر اور بھی نکتے ہوں گے، لیکن مجھے تو ایک بات سمجھ آئی ہے کہ اللہ کو اپنے نبی کی زبان مبارک سے پہلا لفظ، پہلا حرف جو رسول اللہ کے لبوں سے نکلا، میرے نبی کے ہونٹوں سے نکلا، وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اپنے کلام کا آغاز اس حرف سے کر دیا. ذرا دیکھے تو صحیح، عالم ارواح کی طرف چلے جائیے، تمام کی تمام روحیں وہاں اکٹھی ہیں. اللہ نے سب روحوں کو اکٹھا کیا، تمام نبیوں کی روحیں اکٹھی ہیں، تمام رسولوں کی روحیں اکٹھی ہیں، تمام پیغمبروں کی روحیں اکٹھی ہیں، تمام کے تمام لوگوں کی روحیں اکٹھی ہیں. اللہ نے سب سے سوال کیا، الست بربکم، کہ تم بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام کی تمام روحیں خاموش تھی اس موقع پر. سب سے پہلے جس روح نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے وہ روح مصطفیٰ ہے. سب سے پہلے جس روح نے اللہ کی الوہیت کا اقرار کیا ہے وہ روح مصطفیٰ ہے. اور اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے سب سے پہلے جو لفظ نکلا وہ بلا کا لفظ نکلا، اور بلا میں پہلے نمبر پہ حرف با آتی ہے. اللہ کو یہ عطا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن کا آغاز بھی حرف با سے کر دیا. یہ تو وہ نبی کی عطا ہے جو اللہ کو اس قدر پسند آ رہی ہے. جب میں اللہ کے قرآن سے پوچھتا ہوں، پیارے پیغمبر کا تذکرہ رب کی زبانی سنتے ہیں، دنیا کا خطیب تو کر جاتا ہے، دنیا کا ادیب تو کر جاتا ہے، دنیا کا نعت خان تو نعت خانی میں نبی کی شان بیان کر جاتا ہے، لیکن آؤ اس پروردگار عالم سے مصطفیٰ کی عصمت پوچھتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے نبی کی شان پوچھنا چاہتے ہو تو رب یوں بیان کرتا ہے، لا اقسم بہذا البلد الامین. اللہ ایک جگہ کی قسم کھا رہے ہیں کہ قسم ہے اس بلد امین کی، اس امانت والے، اس امن والے شہر مکہ مکرمہ کی. ذرا سوال تو کیجئے پروردگار عالم سے، الہ العالمین، یہ مکہ کی دھرتی آدم علیہ السلام کے دور میں موجود تھی، یہ مکہ کی دھرتی نوح علیہ السلام کے دور میں موجود تھی، یہی مکہ کی دھرتی ابراہیم خلیل اللہ کے دور میں موجود تھی، یہی مکہ کی دھرتی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں موجود تھی، یہی مکہ کی دھرتی چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام کے تمام نبیوں کے دور میں موجود تھی. الہی تو نے مکہ کا کبھی تذکرہ اس وقت تو نہیں کیا، کبھی مکہ کی دھرتی کی بات تو نے پہلے نبیوں کے دور میں نہیں کی. اب نبیوں کے دور تو گزر چکے، جب آمنہ کا لال آیا ہے تو نے لا اقسم بہذا البلد الامین کہہ دیا. صرف تذکرہ ہی نہیں کیا بلکہ اس دھرتی کی تو نے قسم اٹھا دی ہے. قسم اٹھانے والا وہ رب ذوالجلال ہے، قسم اٹھانے والا وہ پروردگار عالم ہے، قسم اٹھانے والی وہ ذات ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ وہ ذات ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. قسم اٹھانے والی وہ ذات ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد. قسم اٹھانے والی وہ ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے
है लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज, कसम उठाने वाला वो रब्बुल आलमीन है जिसने जमीन आसमान को बगैर नमूने के बना के रख दिया। कसम उठाने वाला वो परवरदिगार आलम है मक्का की धरती की। जरा पूछ तो सही इलाहुल आलमीन तूने मक्का की धरती की अब कसम क्यों उठाई? अल्लाह फरमाते हैं ये अजीम पैगंबर है, ये कोई आम पैगंबर नहीं है, ये कोई आम नबी नहीं है, ये कोई आम रसूल नहीं है, ये कोई आम शख्सियत नहीं है। इसे आमना का लाल कहते हैं, इसे अब्दुल्ला का दुर्र यतीम कहते हैं, इसे इमामुल अंबिया भी कहते हैं, इसे इमामुल मुरसलीन भी कहते हैं, इसे इमामुल मलाका भी कहते हैं, इसे साके कौसर भी कहते हैं, इसे शाफी मैसर भी कहते हैं, इसे शफी मुजनबी नबी भी कहते हैं। ये नबी तो इतनी अजमत वाला है। अल्लाह फरमाते हैं मैंने सारे इनाम दिए हैं लेकिन इंसान कोई नहीं जतलाया। मैंने तमाम नेमतें तमाम कर दी है लेकिन इंसान नहीं जतलाया। जब मुस्तफा आते हैं अल्लाह ऐलान करते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मुफस्सरीन कहते हैं अल्लाह ने मन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अनअमल्ला भी कह सकते थे लेकिन अल्लाह ने यहाँ अंदाज बदल दिया, लफ्ज़ बदल दिया, माता बदल दिया। क्यों बदला? उसकी वजह यह थी इनाम तो ये है एक आदमी मुझे मोटरसाइकिल इनाम देता है, मैं उसको पैसे देता हूँ, कोई बकरी हदिये में देता हूँ, इनाम का बदल हो गया, काम बराबर सराबर हो गया। लेकिन मन वाला इनाम ऐसा इनाम है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदो मैं तुम्हें अपना नबी देकर ऐसे अपना खजाना लुटा रहा हूँ। अगर पूरी जिंदगी तू सजदे में पढ़ के सुभान रब्बियल आके की सदा की रट लगाता रहे तब भी मुस्तफा के इनाम का बदल नहीं हो सकता। नारे तकबीर, शाने रिसालत, शाने सहाबा, शाने कुरान, नारे तकबीर। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह फरमाते हैं वो ऐसा बदल, ऐसा बेबदल नबी मैंने तुम्हें दिया, बेमिसल नबी तुम्हें दिया, बेमिसाल तुम्हें नबी दिया कि उस नबी जैसा भी कोई नहीं, उस नबी से आला भी कोई नहीं, उस नबी के बराबर भी कोई नहीं। इतनी अजमत वाला नबी जब मक्का की धरती पे आता है, मेरा नबी मक्का की धरती पे चलता है, मेरा नबी मक्का की धरती पे कदम मुबारक रखते हैं। मैं नबी के कदमों की बात तो बात में करूंगा। मेरा नबी बगैर जूती के तो नहीं चला होगा, मुस्तफा ने जूती पहनी होगी। जो जूती नबी के तलवों को लगी और वो जूती जमीन पे लगी, अल्लाह ने उसकी कदर ये बढ़ाई, अल्लाह ने शान ये दिया, अल्लाह ने मकाम ये दिया कि नबी की वो जूती जब मक्का की से जमीन पे लगती है, नबी के कदम उठते हैं, वो जमीन इतनी कीमती बन जाती है, मक्का इतनी अजमत वाला बन जाता है, मक्का इतनी शान वाला बन जाता है कि अल्लाह को कुरान के अंदर उसकी अजमत की कसम खानी पड़ती है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदिल अमीन कहना पड़ता है। जिस धरती पे नबी की ज्योति लगे उसकी कसमें अल्लाह कुरान में खाए, और जो सीने नबी के सीने से लगे उस अबू बकर की शान के क्या कहें। सिद्दीक़ अकबर, शान सहाबा, शान मुस्तफा, शान औलिया अल्लाह, नारे तकबीर। मेरे भाइयों अहले सुन्नत वल जमात का तो ये अकीदा है जो चीज नबी से लग गई वो भी जन्नती, जिस चीज से नबी लग गया वो भी जन्नती। वो जन्नती, वो निस्बत वाले। और जहां जहां मेरे प्यारे नबी की निस्बत जुड़ती चली गई है अल्लाह ने उनकी शान बढ़ा दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए नबी, आप तमाम जहानों के लिए रसूल, आपकी नबूवत तमाम जहानों के लिए, क़यामत तक आने वालों के लिए जिन चीजों की निस्बत रसूलुल्लाह से जुड़ी है वो नबी की सुन्नतें कहलाई है। वो क़यामत तक नबी की सुन्नतें रहेगी। जब तक नबी की नबूवत चलेगी नबी की सुन्नतें रहेगी। और जो जो नबी के दीवाने बनते चले गए, नबी की खिदमत में आते चले गए, नबी का दीदार करते चले गए, नबी की सोबत में बैठते
चले गए, नबी का सहाबा बढ़ते चले गए, नबी की नबूवत क़यामत तक, नबी का तज़किरा क़यामत तक, नबी की शान क़यामत से आगे जन्नत में दाखिल होने तक जो जो नबी के साथ जुड़ा, नबी के गुलामों का तज़किरा भी नबी के साथ साथ चलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा। आज हम बड़ी खुशकिस्मती से और बड़े फख्र से अपने बेटों का नाम बिलाल रखते हैं, मोहम्मद बिलाल। हम अपने बेटों का नाम अबू बकर रखते हैं, हम अपने बेटों का नाम उमर रखते हैं, हम अपने बेटों का नाम उस्मान रखते हैं, हम अपने बेटों का नाम अली रखते हैं, हम अपने बेटों का नाम हसन और हुसैन रखते हैं, हम अपने बेटों का नाम मुआविया रखते हैं, हम अपने बेटों का नाम अब्दुर्रहमान रखते हैं, हम अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रखते हैं, हम अपने बेटे का नाम तलहा रखते हैं, हम अपने बेटे का नाम हंसला रखते हैं। और क्यों रखते हैं? इसलिए कि ये नबी के दीवाने थे और जिनकी निस्बत मुस्तफ़ा से कट गई, आज उनका तज़किरा करने वाला कोई नहीं है। जो लोग नबी से कट गए, जिन्होंने नबी का कलमा नहीं पढ़ा, नबी के मजलिस में नहीं आए, नबी की बात नहीं मानी, वो खा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, खा उसका चेहरा चमकता हुआ क्यों ना हो, अंगारे की तरह दखता ही क्यों ना हो, लेकिन नबी की बात नहीं मानी, तब्बत यदा अबी लहब व तब बना। और जिसने बिलाल होठ मोटे मोटे हैं, रंग काला है, गुलाम है, हबशे से बिकता बिकाता आया है, मुस्तफा की बात मानी है, चलता जमीन पे है, आवाज जन्नत में आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुस्तफा के साथ ये वो निस्बत है। कोई भी अबू जहल रखने को तैयार कोई नहीं, कोई भी अबू लहब रखने को तैयार कोई नहीं, कोई भी उतबा और शैबा रखने को तैयार कोई नहीं। मेरे भाइयों, ये वो मुस्तफा के साथ ये वो अजीम निस्बत है जिसने इस निस्बत के साथ अपने आप को वाबस्ता कर लिया, वो जन्नत का वारिस बन गया। मेरे नबी के नाम की तो इतनी अजमत है, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएंगे कुम या मोहम्मद उदखुलुल जन्ना, ए मोहम्मद खड़े हो जाइए और जन्नत की तरफ तशरीफ ले जाइए। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों के सिर्फ नाम मोहम्मद हैं और वो इसी एजाज के लिए रखा करते हैं। जब अल्लाह का ये इनाम होगा, ये ऐलान होगा, तो जहाँ मुस्तफ़ा उठेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे, साथ वो लोग भी खड़े हो जाएंगे जिनका नाम दुनिया में सिर्फ मोहम्मद था। जब वो खड़े होंगे तो वो भी रसूलुल्लाह के साथ चलना शुरू कर देंगे। अल्लाह फरमाएंगे, मैंने तो अपने नबी को कहा था, मैंने तो अपने रसूल को कहा था, ऐ बंदो मैंने तुम इस मुस्तफ़ा को कहा था, लेकिन चूंकि तुम्हारे नाम भी मोहम्मद है, तुमने नाम मेरे नबी के नाम जैसा रखा, तुमने दुनिया के अंदर नाम वो रखा जो मेरे नबी वाला नाम था, जाओ इसी नाम की बरकत से तुम भी जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये नाम इतनी अज़मत वाला है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद का जब नाम लिया जाता है, होंठ आपस में मिलते हुए नजर आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हम नाम लेते हैं, होंठ आपस के अंदर मिल जाते हैं। ये नाम बता रहा है, ये ऐसा नबी आ रहा है जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाने के लिए आ रहा है, जो मोहब्बतें तकसीम करने के लिए आ रहा है, नफरतों को मिटाने के लिए आ रहा है, शिर्क और बिदअत के बूटे काटने के लिए आ रहा है। ये वो पैगंबर आ रहा है जिस पैगंबर की आमद पर कायनात के अंदर इनकलाब बर्पा हो गया। ये वो अजीम नबी आ रहा है जिस नबी की आमद पर वो फारस का आतश कदा अचानक बच गया और उन्हें पैगाम दे दिया गया, और मजूसियों अब आग की इबादत नहीं होगी, आग के रब की इबादत होगी।
जब मेरा नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो कैसर और किसरा के महल में 14 टुकड़े हो गए, दरारें पड़ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आमरी पर बैतुल्लाह के अंदर बुत पड़े थे, सारे ही सारे गिर पड़े, तमाम के तमाम औंधे मुंह गिरे पड़े हैं। पैगाम दे दिया, अब ऐसा नबी दुनिया में तशरीफ लाएगा जो अल्लाह के घर बैतुल्लाह को अल्लाह की इबादत से बात करेगा, गैरुल्लाह से पाक करेगा। अल्लाह के प्यारे पैगंबर दुनिया के अंदर मेरे भाइयों तशरीफ लाए, पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद इस रूए जमीन के लिए भी रहमत था। जो जमीन का टुकड़ा अर्श गुजर गया था, कोई जमीन पे अल्लाह अकबर का नाम लेने वाला नहीं था। जब आमना का लाल आया रबीउल अव्वल के महीने के अंदर, पहली बहार बन के मेरा नबी आया। अल्लाह के नबी इस्लाम की वो ऐसी बहार बन कर आए, ऐसा दीन लेकर आए कि मेरे नबी का वो दीन समंदरों के जजीरों में भी पहुंचा। अल्लाह अकबर की सदाएं उस वक्त गूंजी जब हजरत मुआविया ने 60 जहाजों का इंतजाम करके 20 मशरक की तरफ, 20 मगरब की तरफ, 20 शुमाल की तरफ और जुनूब की तरफ कुरान के कारियों को जहाज में बिठाकर हजरत मुआविया ने कहा, और कुरान के कारियों वापस आने का ना सोचना, अपने घर का ना सोचना, अपने बीवी बच्चों का ना सोचना, उनके वजीफे का इंतजाम मैं मुआविया ने कर दिया है। तुम्हारी ड्यूटी यही है, समंदरों में चले जाओ, जहां जहां जजीरा आए एक एक उतरते जाओ, नबी का कुरान भी पढ़ाते जाओ, अल्लाह अकबर भी बुलंद करते जाओ। नारे तकबीर, शान सहाबा, शान कुरान। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन नबी बना के भेजा। मेरे भाइयों, ये वो खत्म नबूवत इतना अहम अकीदा है और मसला है जो इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। अगर इंसान कहे जी खत्म नबूवत कोई इतना जरूरी तो नहीं, अगर जरूरी नहीं मानेगा तो फिर दीन नया मानना पड़ेगा, फिर कुरान नया लाना पड़ेगा, फिर नमाज नई लानी पड़ेगी, फिर किबला नया लाना पड़ेगा, सारे तरीके नए लाने पड़ेंगे। लेकिन अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन बना के भेजा है। जब रब ने मुस्तफ़ा को खातमुन नबीयीन बनाया है, अल्लाह का भी अकीदा यही है कि मेरा ये नबी खातमुन नबीयीन नबी है। रब ने ये असूल और ज़ाब्ता बयान कर दिया। कुरान का अकीदा भी यही है। तमाम के तमाम मलाइका, तमाम के तमाम फरिश्तों का अकीदा भी यही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खातमुन नबीयीन साथ है। अगर जबरील होता, जबरील का आना जाना होता तो कभी पूछता जबरील तू वही लेकर आएगा? वो कहता मैं किस पर वही लाता? आमना का लाल तो खातमुन नबीयीन है। अब वही का दरवाजा बंद हो गया। मेरा आना तो होगा, लैलतुल कद्र में उतरना तो होगा, आना जाना तो होगा, लेकिन वही लाना नहीं होगा। अल्लाह ने खातमुन नबीयीन रसूलुल्लाह को बना के भेजा। ये अकीदा इंसानों का भी, मुसलमानों का भी, जिन्नात का भी, अशरातुल अर्ज़ का भी, हत्ता के जंगल के परिंदों जानवरों का भी अकीदा है कि रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन है। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन कैसे हैं? कुरान की 100 आयात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पे दलालत कर रही हैं और 200 मुतवातिर हदीस हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत को बयान कर रही हैं। खत्म नबूवत अकीदा क्या है? खत्म नबूवत अकीदा ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं।
آخری رسول ہیں. آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. جب قرآن سے نبی کی ختم نبوت پوچھتے ہیں تو اللہ کا قرآن یوں بیان کرتا ہے. باقی جتنے بھی نبی آئے اللہ نے فرمایا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. ابراہیم علیہ السلام کی بات آتی ہے، صالح علیہ السلام کی بات آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. اور جب وہ نبی تبلیغ کرتے ہیں تو نبی کی تبلیغ کو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے. انبیاء کہتے ہیں یا قومی اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو آپ کی قوم کی طرف بھیجا، بلکہ اللہ نے فرمایا انا ارسلناک، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا کافۃ للناس، تمام کی تمام انسانیت کے لیے بھیجا. اللہ کی قرآن کی آیت ختم نبوت پہ دلالت کر رہی ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تبلیغ کی ہے تو یہ نہیں کہا اے میری قوم میری بات مانو. اللہ کے نبی نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں اور نبی بن کر آیا ہوں. اللہ کا قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ نبی نے تمام انسانوں کو خطاب کیا ہے. اور آدم علیہ السلام سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے لے کر قیامت تک آخری جو بھی انسان آئے گا وہ تمام کے تمام رسول اللہ کے یا ایھا الناس کے خطاب کے اندر شامل ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر. اور یاد رکھیے اللہ نے جتنے بھی نبی بنائے ہیں وہ سارے کے سارے نبی خاندانی نبی تھے، ان کا خاندان اعلیٰ تھا. اللہ نے جتنے بھی نبی بنائے ہیں وہ تمام کے تمام عیبوں سے پاک تھے. نبی ظاہری عیب سے بھی پاک ہوتا ہے، نبی باطنی عیب سے بھی پاک ہوتا ہے. باطنی عیب کا مطلب یہ ہے کہ نبی میں کینہ نہیں ہوتا، بغض نہیں ہوتا، عداوت اور دشمنی نہیں ہوتی. نبی کا دل شیشے کی طرح صاف ہوا کرتا ہے. نبی امت کے لیے باپ سے زیادہ شفیق ہوا کرتا ہے. اور ظاہری عیبوں سے بھی نبی پاک ہوتا ہے. کوئی نبی لنگڑا دنیا کے اندر نہیں آیا، کوئی نبی لنگڑا اور لولا دنیا کے اندر نہیں آیا. کوئی کمزور دماغ والا، کوئی موٹے دماغ والا نبی اللہ نے نہیں بنایا. کوئی اندھا کانا اللہ نے نبی نہیں بنایا. اللہ نے نبی بنایا تو حسین بنایا ہے، معجبین بنایا ہے. اور ایسا حسین بنایا آمنہ کے لال کو کہ جس کے چہرے کی قسم کی بات کرتے ہیں تو اللہ کا قرآن چہرے کو بیان کرتے ہوئے والضحیٰ کہتا ہے. وہ نبی کا اتنا حسین چہرہ، اور کہاں قادیان کا وہ مرزا قادیانی اور وہ کانا اور انتھا اور لنگڑا اور لولا اور پاگل اور مینٹل اور موٹے دماغ والا اور میٹرک میں فیل ہونے والا اور انگریزوں کی منشا گیری کرنے والا اور ٹوٹ، وہ بھی اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتا ہے. جب میں سچے نبی کی قرآن سے بات پوچھتا ہوں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے سچے نبی کا چہرہ دیکھنا ہو تو آؤ میں تمہیں چہرہ بتاتا ہوں. اللہ کا قرآن کہتا ہے نبی کے چہرے کی بات والضحیٰ ہے. نبی کا چہرہ سورج کی طرح چمکتا ہوا روشندان ہے، اتنا حسین و جمیل ہے. میں نے صحابہ سے پوچھا اور صحابہ تم نبی کے چہرے کو تم بیان کرو نا، نبی کے رخ انور کو تم بیان کرو نا، نبی کے حسن کو تم بیان کرو نا. ابو بکر تو بتا، عمر تو بتا، عثمان تو بتا، اور صحابہ کی جماعت تم رسول اللہ کے چہرے کو بیان کرو جس کو اللہ کا قرآن والضحیٰ کہتا ہے. صحابہ کہتے ہیں اور لوگوں تمہیں قرآن پڑھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، رٹا لگانا پڑتا ہے، دور کرنا پڑتا ہے، منظر سنانی پڑتی ہے، سب کی سنانی پڑتی ہے، پیچھے سے پھیرا دینا پڑتا ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے. صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ کا چہرہ ایسا خوبصورت تھا، ایسا معجبین تھا، ایسا پیارا تھا، ہم مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے تھے اللہ کا قرآن سینے میں اتر جاتا تھا. نعرہ تکبیر،
बस मेरे भाइयों, आखिरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी जितने भी आए हैं, तमाम के तमाम हसीन नबी आए हैं, माजबीन नबी आए हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मक्का की धरती की बात करते हैं तो अल्लाह का कुरान कहता है वहासल बलदिल अमीन। जब नबी के लिबास की बात करते हैं तो अल्लाह का कुरान कहता है वसियाबा का फताहिर। जब नबी के अखलाक की बात करते हैं तो अल्लाह का कुरान कहता है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। जब नबी के सीने मुबारक की बात करते हैं तो अल्लाह का कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक। जब नबी के जिक्र खैर की बात करते हैं तो अल्लाह का कुरान कहता है वरफाना लका जिक्रक। जब नबी के हौज़े कौसर की बात करते हैं तो अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना आतैना कल कौसर। जब नबी की रहमत वाली चादर की बात करते हैं तो अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर। जब नबी की रहमत की बात करते हैं तो अल्लाह का कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह का कुरान नबी को कभी यासीन कहता है, कभी तोहा कहता है, कभी दाइयन इलल्लाह कहता है, कभी सिराजम मुनीरा कहता है। ये सारा का सारा कुरान ये नबी के तज़किरे से भरा पड़ा है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नबी का तमाम निज़ाम हसीन है। जहाँ जहाँ नबी आया वो अल्लाह ने खूबसूरत बनाई है। मक्का आया, मक्का हसीन बनता चला गया। नबी हिजरत करके मदीना गए, मदीना हसीन बन गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलना हसीन है, रसूलुल्लाह के हाथ मुबारक हसीन है। मेरा नबी बात करता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक से शुआए नूर की पैदा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमीन पे तकाजा करते वो जमीन नबी मेरे नबी के तकाजे को ले जाती। आप सल्लल्लाहु जब उठते उस जगह से खुशबू महक उठती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलो बरास भी पाक था, नबी का खून मुबारक भी पाक था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सोया करती थी, आपका दिल हर वक्त बेदार रहा करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलना भी हसीन है, बैठना भी हसीन है, खाने का अंदाज भी हसीन है, पौरे मुबारक भी हसीन है, उंगलियां मुबारक भी हसीन है, हाथ मुबारक भी हसीन है, कलाइयां मुबारक भी हसीन है, जुल्फ़े मुबारक भी हसीन है, लिबास मुबारक भी हसीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना भी खूबसूरत है, मदीना भी खूबसूरत है, पसीना भी खूबसूरत है। ये मेरे नबी, मेरे भाइयों, अल्लाह ने इतनी मुस्तफ़ा को असमत बयान की है, इतनी शान दी है, इतना मकाम दिया है। जो मेरे नबी की सुन्नतों को अपना लेता है वो भी चमक जाता है, वो जगमगाने लग जाता है। एक सुन्नत का तुझे सबक देता चलूं और बात खत्म करूं। मेरे नबी की सुन्नत में सवाक है जिसको मामूली न समझना। उलमाए इकराम ने बहुत सारे फायदे लिखे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ा फायदा मिसवाक का ये है, जो आदमी सुन्नत मिसवाक का एहतमाम करेगा अल्लाह उसका खात्मा ईमान पे करेंगे, मरते वक्त उसे कलमा नसीब हो जाएगा। ये इतनी बड़ी नबी की सुन्नत है। आओ इस पंडाल के अंदर नबी की सीरत के प्रोग्राम के अंदर नबी से मोहब्बत का वाहद करके जाओ, वादा करके जाओ। जिसने नमाज़ें नहीं पढ़ी वो नबी के इस प्रोग्राम के अंदर वो वादा करे कि मैं इस प्रोग्राम के अंदर अहद करता हूँ। पहले नमाजें छूटती थी, अब नमाज नहीं छूटेगी, तहज्जुद भी पढ़ा करूँगा। इस प्रोग्राम के अंदर वादा करो, जो पहले झूठ बोलता था इस प्रोग्राम में वादा करो कि मेरे नबी ने फरमाया अस्सिद्क़ु युनजी, सच निजात देता है। मौत आती है तो आ जाए, सच बोलूंगा, सच बोलते हुए मर जाए, जन्नत में दाखिल हो जाए। आओ इस प्रोग्राम के अंदर अहद करो कि हम रिश्वत नहीं लेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, डकैती नहीं करेंगे। और नौजवान इस नबी के सीरत के प्रोग्राम के अंदर आज इस बात का वादा कर कि मैं अल्लाह की दी हुई जवानी को रब के और मुस्तफा को राजी करने के अंदर लगाऊंगा। उस जैसा डकैत न बन जा जो मेहनत कर
के मजदूर आ रहा था, शाम को 500 रुपया मजदूरी का लेकर आया, तूने नकली पिस्तौल दिखाया, ये असली पिस्तौल दिखाया, धमकी देकर उसका 500 छीन लिया, जो सारा दिन वो मेहनत मजदूरी करके कमा के अपने बच्चों के लिए उसने सालन लेना था, सब्जी लेनी थी, घी लेनी थी। आज तू जवानी के जोर पर नबी की उम्मत को दुखाता है। याद रख, मुस्तफा को क़यामत के दिन न चेहरा दिखा सकेगा, न रसूलुल्लाह के हौज़े कौसर से तू जाम पी सकेगा। आज अगर गलती की है तौबा कर ले, अल्लाह माफ कर देगा। बगैर तौबा के मरा नबी की शफाअत भी नहीं मिलेगी। पूछा जाएगा और नौजवान जवानी कहाँ कर लगा के आया, यही कहेगा मैं कलमा पढ़ने वालों को लूटता रहा, यही कहेगा मैं कलमा पढ़ने वालों के जान माल की टिकटी करता रहा हूँ। और ना शैतान को राजी न कर, रहमान को राजी कर, मुस्तफा को राजी कर। जिस नबी के सदके अल्लाह ने तुझे खूबसूरत जवानी दी है, उस मुस्तफा को राजी कर। दुनिया नाराज होती है हो जाए तो कहेगा मैं फिर क्या करूं, और चटनी खा के जिंदगी गुजार के चला जा। जन्नत की नेमतें तेरे लिए अल्लाह तमाम कर देगा। जन्नत पे वो नेमतें अल्लाह तेरे लिए निशावर कर देगा कि तेरा दिलो दिमाग भी उन नेमतों को नहीं सोचेगा। अगर इसके हलाल करके गया और हराम खा के गया तो मेरे नबी ने फरमाया कि ऐसा आदमी तो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा। हालांकि जन्नत की खुशबू तो बड़ी दूर दूर से सुनाई देती है और आएगी, लोग सूंघेंगे, लेकिन हराम खाने वाला, हराम से बदन को परवान चढ़ाने वाला जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकेगा। और आओ इस नबी के अज़मत वाले प्रोग्राम के अंदर, और नौजवानों वादा करो हम अपनी जवानी अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने में लगाए। और आखिरी बात, जब नबी आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का क्या तकाजा है? मोहब्बत का तकाजा यही है कि हम अल्लाह का कुरान पढ़ा करें, इससे मुस्तफ़ा भी राजी होगा। नबी से मोहब्बत ये है कि नबी की सुन्नतों को मेरे भाइयों घर के अंदर लाओ। ये बदन अल्लाह ने दिया है। जब रबीउल अव्वल आए तो सिर्फ रबीउल अव्वल के अंदर ही नहीं, पूरा साल ही अपने बदन को नबी की सुन्नतों से रोशन रखा। पूरा साल ही तेरे बदन पर नबी की सुन्नतें जगमगाती हुई नजर आ रही हों। मट्टी की दीवार को चमकाएगा, अजर जो मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन मैं तो इतना कहता हूँ जब तू इस बदन को चमकाएगा तो कब्र में भी काम आएगा, मैदान महशर में भी काम आएगा। ये नबी की सुन्नतें लेकर जब तू दुनिया से जाएगा कब्र के अंदर, ये वो दाढ़ी मुबारक आज दाढ़ी ऐब बन गई। बस में मौलवी बैठा हो तो दूसरा बैठने को तैयार नहीं होता साथ सीट पर, और अगर कोई बैठा हो तो वो आलम को बिठाना पसंद नहीं करता। कोशिश होगी कि मौलवी अगम पिछा ही हो जावे, मेरे नाल वाली सीट वेली पी रहे। अज अगर तू उलमा को भजेगा तो कल नबी दे कोल नहीं बह सकता। अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा नबियों के साथ होंगे, नबियों के साथ। और अगर तू उलमा से मोहब्बत करेगा तो तू उलमा के साथ होगा, नबियों के करीब होगा। मेरे भाइयों, उलमा से मोहब्बत करो। अगर तुम उलमा से कट गए तो फिर बहुत सारे फितने ऐसे हैं कि तू शाम को मुसलमान होगा, सुबह इस्लाम से खारिज हो चुका होगा। उलमा से कटने की वजह से ये उलमा का वजूद रहमत है। अल्लाह ताला हम सब के मेहनत और कोशिश, जिन हजरात ने, नौजवानों ने, जिन भाइयों ने इस हसीन प्रोग्राम का इंतज़ाम किया, एहतमाम किया, अल्लाह सब की मेहनत और कोशिश को कबूल फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।